Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? Hope that you all are doing great and also doing your work of science on time. Tell me, what is the date today? It's 25th of May 2021. Day is Tuesday, and you're having your science lesson with me. The chapter that we are reading these days is unit number 5, Environment, and our today's topic is protecting endangered species. As usual, we will go through our previous lesson of science and then we will start the new topic today. Can you tell me what was the name of the topic that we have learned in our yesterday's science class? Thank you, Mohib. You have given the right answer. Protecting the environment. It was our yesterday's topic. Protecting the environment, and while talking about this topic we were giving the suggestions, and we have seen that what are the reasons that our earth, sorry I forget to write the word R, water, air, how we can keep these why these things are getting polluted and what we can do to keep them clean, like what should we do to keep the earth clean, what we should do to keep the water and air clean. And in your yesterday's video I have given you a task that you have to make a poster and give the ideas like what are the things that we can do to keep our earth, water and air clean. I haven't received any assignment yet because I have given it to you yesterday, and you are having the weekend for that task. So all the very best for that task, and I'm really looking forward that and very excited to know that what are the ideas you will be bringing up by the drawing. So, and we have also done the written work related to our this topic about protecting the environment. So this was all about the revision, and I am also giving you the reminder to complete your project on time and send it to me on my WhatsApp number. So let's start the new topic today, that is protecting endangered species. Like always I will say, like first we will understand the topic, like what the topic is explaining about itself. Protecting, you already know the meaning of the protect is to save something. हम कल के लेसन में प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट के बारे में लर्न कर रहे थे कि हम इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आज के टॉपिक में वी विल बी टॉकिंग हाउ टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड स्पीशी. प्रोटेक्ट का मीनिंग आपको पहले पता है, सेफ होता है. इंडेंजर्ड स्पीशी इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू एंड यू विल बी लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सबसे पहले हम स्पीशी की बात करते हैं. सो माई स्टूडेंट्स, स्पीशी का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी जो लिविंग चीज़ होती है, जैसे प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, वाटर एनिमल्स हो सकते हैं. स्पीशी इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. A group of living organism that may be a group of plant, a group of animal or an insect. किसी भी इनमें से किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है, ठीक है. सो स्पीशी के बारे में आई होप आपको क्लियर है. अब हम बात करते हैं इंडेंजर्ड की. इंडेंजर्ड आर द थिंग दैट आर नॉट प्रोटेक्टेड, that are in danger to becoming lost permanently, जो रिस्क में होती हैं. जैसे अगर हम किसी चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करें, उसकी हिफाजत नहीं करें तो वो ख़राब हो जाती है. इसी तरह अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ख्याल नहीं रखेंगे, हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उसको सेफ नहीं करेंगे, व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली इट बिकम डाइड कम्प्लीटली. और अगर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की सारे एनिमल्स उस तरह के ख़त्म हो जाएंगे तो दैट विल बी कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट. वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाना. एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि इस दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाना, उनकी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाकी ना बचना, ठीक है. सो एंडेंजर्ड के बारे में आप राइट करोगे रिस्क ऑफ डाइंग. ऑलराइट, अब अगर हम इस टॉपिक को, इन वर्ड्स को कंपाइल करें, प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीशी, मैंने एरोस के साथ इनके मीनिंग्स राइट किए हुए. कैन यू डू इट? लाइक सेविंग या सेविंग द risky animal, group of animals that are at risk.
अब ये तो था टॉपिक का मीनिंग कि हमने उन एनिमल्स को, उन ग्रुप ऑफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है जिनकी लाइफ जो है वो रिस्क में है, लाइक उनकी लाइफ जो है वो डेंजर में है, कि अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो दे विल बी डाइड आउट कम्प्लीटली, वो हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडेंजर्ड। क्या ऐसे काम होते हैं जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंडेंजर्ड होना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनकी लाइफ जब वो ख़तरे में चली जाती है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसकी रीज़न ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़। आपको पता है कि बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका हैबिटेट होता है फॉरेस्ट, और अगर हम फॉरेस्ट को उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इफ़ वी विल बी कटिंग द ट्रीज, तो हम बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इफ़ वी आर पोल्यूटिंग द वाटर, इफ़ वी आर पोल्यूटिंग द अर्थ, तो हम इस तरह भी अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तो दीज आर द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन, लाइक कटिंग ट्रीज, मेकिंग द वाटर एंड अर्थ पोल्यूटेड, और not letting the living organism to live in the particular space, उनका habitat destroy करना, this is the one of the reason. Other reason is like जैसे हम किसी और उन एनिमल्स का हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दें, या फिर कोई न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि उस जगह पे नहीं रह सकते बट फिर भी हम उनको वहाँ पे ग्रो करा रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स इफ़ वी डू, देन बाय डूइंग दिस वी आर मेकिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्रिटिकल कंडीशन, कि जिससे उनकी लाइफ जो है वो डेंजर में चली जाती है, वो ग्रो नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। जब वो ग्रो नहीं करते, सर्वाइव नहीं करते, अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरह अगर एक ग्रुप, लेट्स सपोज हम बात करते हैं लाइक पांडास की बात कर लेते हैं। पांडास आर इंडेंजर्ड स्पीशी। क्यों? क्योंकि शायद उनको फूड नहीं मिल रहा। आपको पता है पांडास जो है वो बैम्बू ट्रीज यूज़ करते हैं। हैव यू एवर सीन द बैम्बू ट्री? आई विल शो इट टू यू, हमारे स्कूल में भी है। Wait a second, I want to show it to you. The video that I have just shown to you, it was on the back side of our school. ये बैम्बू ट्रीज होते हैं जिनका जो स्टेम होता है वो बहुत थिक होता है, हार्ड होता है, और पांडास इसको एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हम पांडास को उनका रिक्वायर्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करते, उनको फूड प्रोवाइड नहीं करते, जिस तरह का उनको इन्वायरमेंट चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, तो क्या होता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते, उनकी डेथ हो जाती है। और क्योंकि हमने पांडास को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो अब लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग पांडास आर इंडेंजर्ड। अगर हम बाकी जितने भी लेफ्ट पांडास हैं पूरी वर्ल्ड में, अगर अब उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जस्ट द वे डायनासोर्स आर। आप में से, हम में से किसी ने भी डायनासोर्स को देखा नहीं हुआ, हम उनकी लेफ़्ट ओवर से उनको गेस करते हैं कि इट वॉज लाइक दैट, ठीक है। जैसे डोडो है, इस तरह के एनिमल्स ये पहले पुराने ज़माने में तो थे, लेकिन क्योंकि तब हमने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, इन्वायरमेंट रिसोर्सेज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से दे आर डाइड। अब हम उनको एक्सटिंक्ट एनिमल्स के तौर पर याद रखते हैं कि वो पहले थे लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर हमने अभी के कुछ एनिमल्स, जैसे कि आई वॉन्ट टू टेल यू, देर आर सम एनिमल्स लाइक ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास, पांडास, टाइगर, ब्लू व्हेल, एशियन एलिफेंट, सी ऑटर, स्नो लेपर्ड, इंडियन वाइल्ड एज, ये सब एनिमल्स जो हैं ये इंडेंजर्ड एनिमल हैं लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग। Okay, when we got to know that the species are getting endangered, like we know that they are into risk of dying out completely. What we can do to protect them? I have written the 3 ways. अगर हम stop destroying the habitats, अगर हम फर्स्ट स्टेप पे फॉलो करें कि अगर उनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करें, हाउ वी आर डिस्ट्रॉइंग देयर हैबिटेट? by polluting the water, by cutting the trees, by polluting the earth, ठीक है। इस तरह की चीज़ें करने से हम उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जस्ट थिंक फॉर अ वाइल कि फॉरेस्ट में कितने सारे ट्रीज़ होते हैं,
उन सब ट्रीज़ पे कोई ना कोई बर्ड्स रह रहे होते हैं, इंसेक्ट्स रह रहे होते हैं, वो बहुत सारे एनिमल्स का फूड होता है। अगर हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वहाँ से ट्रीज़ को कट करते जाएंगे, तो बहुत सारे एनिमल्स का, इंसेक्ट्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करते करते हुए अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इफ़ यू आर पोल्यूटिंग द वाटर, जैसे मैं आपको लास्ट लेसन में भी बता रही थी कि दैट वी हैव पोल्यूटेड द वाटर अ लॉट, हम बहुत सारे, स्पेशली प्लास्टिक, जब हम प्लास्टिक को वाटर में थ्रो करते हैं तो आपको पता है कि प्लास्टिक इज़ नॉट डाइजेस्टेबल, एनिमल्स की बॉडी में चला जाता है, उनको ब्रीदिंग का इशू होता है और उनसे उनकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। और रिसेंट ईयर में रिसर्च हुई है दैट 1000 और मिलियन ऑफ वाटर एनिमल्स आर डाइड बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक। और आपको पता है इसी वजह से वी पाकिस्तानी हैव टेकन द इनिशियल, नॉट जस्ट पाकिस्तानी बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट स्टॉप द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। अब आपको शॉपिंग मॉल्स में किसी भी जगह पे प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स नहीं मिलते हैं, वी आर शिफ्टेड टू द पेपर बैग्स जो डिस्पोजेबल होते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक इज़ वेरी डेंजरस फॉर, नॉट फॉर द ह्यूमन्स, ऑल्सो फॉर द एनिमल्स। तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करने से उन एनिमल्स के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। सेकेंड थिंग, डोंट इंट्रोड्यूस अदर स्पीशी। अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में दूसरी अननोन स्पीशी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इससे भी हैबिटेट, उनका जो लाइफ सेटअप है वो डिस्ट्रॉय होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास लाइन्स हैं, हम लाइन्स के साथ डियर्स को, डियर इज़ हैविंग एन अदर स्पीशी, उनका एक अदर एनिमल सेटअप है और लाइन्स का अलग से है। अगर हम डियर और लाइन को इकट्ठे रखेंगे तो क्या होगा, ऑल द लाइन विल ईट द डियर, उनकी हंटिंग करेंगे और उनको खा लेंगे, तो डियर्स का जो हैबिटेट, जो लाइफ स्पैन है वो ख़त्म हो जाएगा बिकॉज दे आर बीइंग ईटन। और इसी तरह अगर आप कुछ ऐसी डेंजरस पॉइजनस एनिमल्स को लॉयंस के साथ रखेंगे, उनकी स्पीशीज़ को, तो वो दे विल बाइट एंड दे मे किल द लॉयंस इज वेल। तो इस तरह हमें नहीं करना चाहिए, दैट वी शुड नॉट इंट्रोड्यूस द न्यू स्पीशी टू द ओल्ड वन। हमें दो डिफरेंट स्पीशीज़ को आपस में साथ में नहीं रखना चाहिए। थर्ड थिंग इज कीपिंग द टेम्परेचर डाउन। वी नो दैट देर आर सम एनिमल्स that are able to survive in the extreme high temperature, but there are some animals that cannot bear the slight high of temperature। जैसे वाटर में टेम्परेचर को नॉर्मल होना चाहिए, कुछ एनिमल्स जो हैं वो कोल्डर एरियाज़ में रहते हैं। अगर हम पोलर बियर्स को पाकिस्तान में शिफ्ट करेंगे, विल दे बी एबल टू सर्वाइव? नॉट एट ऑल, बिकॉज उनको एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर रिक्वायर होता है। तो टेम्परेचर को अगर हम अवॉइड करें, लाइक जितना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को टेम्परेचर चाहिए उनको उतना प्रोवाइड करें, न्यू स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएं या फिर उनके एनिमल्स को हैबिटेट को डिस्ट्रॉय नहीं करें। बाय फोकसिंग ऑन दीज थिंग वी कैन सेव द endangered species। and I was telling you the name of this endangered species and I'm going to write it on the board। I have written the endangered animals here like sea otter, eastern lowland gorillas, pandas, blue whale, Asian elephant। These are few of the examples that I'm sharing with you। Their life is at risk if we are not protecting them, soon they will be died। और ये इस तरह हो जाएगा कि जैसे अभी आप छोटे और आपको इन एनिमल्स के बारे में पता है, दे आर एग्जिस्टिंग इन द अर्थ, फिर जब आप बड़े हो जाओगे तो आप मे भी अगर हमने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो दे विल बी एक्सटिंक्ट, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। पूरी दुनिया में इन जैसा कोई भी एनिमल नहीं होगा और हम कहेंगे वंस वी हैव दीज एनिमल ऑन द अर्थ बट नाउ दे आर नो मोर लेफ्ट। ठीक है, तो वी शुड प्रोटेक्ट ऑल दोज एनिमल दैट आर इंडेंजर्ड। आपको पता है कि पाकिस्तान में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ होती हैं जिनका काम होता है कि इस तरह के एनिमल्स जिनके बारे में पता चल जाता है कि वो इंडेंजर्ड हैं, उनकी हंटिंग पे बैन होता है, उनके हैबिटेट का ख्याल रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट करने के रिसोर्सेज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं ताकि हम उनको बचा सकें। क्योंकि पांडास जो हैं वो इंडेंजर्ड लिस्ट में हैं, तो चाइना के पास हैं। अब चाइना के पास कोई भी अगर विज़िट करने के लिए जाता है तो दे गिव द पांडा एज अ गिफ्ट, क्योंकि ये इंडेंजर्ड में है तो वो उनको एज अ गिफ्ट दूसरी कंट्रीज़ को देते हैं, सो दैट other countries also having these species in their homeland। So this is all about the topic endangered। Let's just give the quick wrap up to it और उसके बाद फिर मैं आपको आपका प्रोजेक्ट असाइन करती हूँ। Today in our science lesson we are talking about the protecting endangered species। And endangered species are those group of species that are at risk of dying out completely, जिनकी लाइफ जो है वो रिस्क में है कि अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। We know that some of the animals like sea otter, eastern lowland gorilla, panda, blue whale, Asian elephant,
Indian wild ass, snow leopard. These are the animals that are critically endangered. अब इनको हम सेव कैसे कर सकते हैं? बाय फॉलोइंग ऑन दीज स्टेप्स. स्टॉप डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट, डोंट इंट्रोड्यूस द अदर स्पीशीज, कीपिंग द टेम्परेचर डाउन. इस तरह की कुछ चीज़ें करने से हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो स्टॉप हंटिंग, उनकी हंटिंग को स्टॉप करके हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब आपका प्रोजेक्ट क्या है? You have to do the research, or you can take the name of these animals that I have mentioned in my class. आपने जैसे सी ऑटर, ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला, पांडा और बाकी किसी के बारे में भी जो इंडेंजर्ड हैं, आपने कोई एक अपना फेवरेट एनिमल सेलेक्ट करना है. आप उसकी पिक्चर पेस्ट भी कर सकते हो, आप ड्रॉ भी कर सकते हो, और फिर आपने उसके बारे में बताना है कि इट इज़ इंडेंजर्ड एंड व्हाट वी शुड डू टू प्रोटेक्ट इट. हमें इसको प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए. कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि ये एनिमल इंडेंजर है, वो फॉरेस्ट में जाके उसकी हंटिंग करते रहते हैं, स्पेशली बर्ड्स की. और अगर हम उनको लोगों को अवेयर करें और पोस्टर्स बनाएं और अवेयरनेस स्प्रेड करें, that will be work. How? Because people get to know कि these are animals are very less in our country and we should not hunt them. अगर हमें किसी जगह पे नज़र भी आ रहे हैं तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. So you should take part in that activity. आपने कोई भी अपने फेवरेट एनिमल का पोस्टर बनाना है, आपने उसके ऊपर टाइटल देना है, इट इज़ एन क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल, और फिर आप बताओगे कि व्हाट यू शुड डू टू प्रोटेक्ट इट. आपको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए. सबसे पहले provide the best habitat to that animal, stop hunting of that animal, take care of that species, do not destroy the habitat, और maintaining the temperature and do not introduce other species. आप इस तरह की कुछ चीज़ें इनलिस्ट कर सकते हैं. दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. और आपने उस पोस्टर कार्ड को हाथ में पकड़ते हुए अपनी पिक्चर क्लिक करनी है, देन यू हैव टू सेंड इट टू मी. आई विल पेस्ट इट ऑन द योर क्लास एक्टिविटी लिंक. तो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि आप एनिमल्स, इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हो. ठीक है, सो एंड इट विल बी वेरी फन एक्टिविटी एज वेल. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. आई थिंक वी आर डन विद आवर चैप्टर. हमने चैप्टर 5 को भी कंप्लीट कर लिया. ओनली वन टॉपिक इज़ लेफ्ट, दैट इज़ एक्सटिंक्ट स्पीशीज. जैसे आज हमने इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में किया है, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे, or we will see what are those species. So this is all about today. Take good care of yourself and do your work, and also make your project on time and send it to me so that I can make I can collect all the picture and then show it to you all together. I am looking like if there is any written work related to our topic, and yes, I find out. On page number 43 of your reading book, they have given you a question. A question is, what are endangered species? Name 5. So do you know what are endangered species? Well done, Abdullah. You have given the right answer. Endangered species are the group of living things that are at risk of dying out completely if we didn't protect them. अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो endangered होंगे. This is a question that you are supposed to do it on the notebook, so let's do it. So this is how you are supposed to do it. You have to write the date, day, unit number, topic, and then the question. What are endangered species? Name 5. They are asking you to tell the endangered species and also asking you to give the names of the endangered species. So you will be writing in the answer. An endangered species is a group of living things that is at risk of dying out completely. जो रिस्क पे हैं कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे if we do not protect them. ठीक है, एग्जाम्पल्स में you will be writing snow leopard, sea otter, panda, tiger, blue whale. So this is all about today. A kind reminder to you that you have to make a poster about the endangered animal. Select one of your favorite animal from the list and write at least 5 sentences about it, how you can protect it. This is you are doing to make the awareness to the other people who do not know about the endangered species. ठीक है, अगर मुझे ये टास्क मिला होता तो I will select blue whale. मैं blue whale को select करती और उसके बारे में बताती that it is in endangered and it is a water animal and we should not pollute water, we should not destroy its habitat, we should not destroy its habitat, we should not pollute its habitat, and we should
try to maintain the temperature, do such thing that do not warm the temperature. So these are the thing I can write, और मैं खूबसूरत सी डायग्राम बनाती ब्लू व्हेल की और फिर उसको शो करती दैट इट इज़ इंडेंजर्ड एनिमल एंड वी शुड टेक केयर ऑफ इट. ठीक है, तो आप भी इसी तरह अपना कोई सा भी फेवरेट एनिमल्स टेक कर सकते हो, स्नो लेपर्ड, सी ऑटर, पांडास, टाइगर and Asian elephant as well. So all the very best for the project and see you in the next class with a new video, new concept. Allah Hafiz.